Hello everybody. Here we are with a new video lecture on lines and angles, NCERT class 9th mathematics, and today we will study another topic of lines and angles, that is parallel lines and transversal. So you all know parallel lines, okay? And then today we'll introduce the concept of transversal. So what is a parallel line? Okay, so lines which never intersect each other. Lines which never intersect each other. So these lines will never intersect. If you extend them, they will not intersect each other. Okay, but if there is some such line which is like this, so this is not a parallel line, because if you extend, they will intersect at some point. Okay, so this is a parallel line and this is a non-parallel line. Also, a parallel line has always equal distance between them, always. Like if it is x meter over here, so at this end also it will be x meter. If you extend it and then check, here also it will be x meter. So the distance between two parallel lines never changes. But if the distance between non-parallel lines, like suppose the distance over here is 5 meters, okay? So the distance over here will be 1 meter, maybe 1 meter. So the distance is not constant in non-parallel lines between the lines. And over here, the distance becomes 0 meters, okay? Because this is the point where they intersect. So this was parallel line and this is non-parallel. Okay? So quickly now we'll jump on to parallel lines and transversal. Okay? So first of all, we'll not study about parallel. First, we'll study the concept of transversal and the angles that this transversal makes on that two lines. Okay. So suppose this is line M and this is line N. So this is clearly, you can see that distance over here is less between the lines and the distance over here is more between the lines. So this is a non-parallel line. And there are two lines, and if you put another line that intersects these both lines, like this, suppose this is line L. Okay, so basically this is what we have to study. Now there are 8 angles, okay, that are related to this. So the first angle is this angle 1, second angle is angle 2, third angle is angle 3, and fourth angle is angle 4. Similarly, on this point where the transversal intersects, there will be another 4 angles. So we'll name angle 5, okay, angle 6, angle 7, and angle 8. So these are the 8 angles. So M and N, M and N. Okay, I'll write these. Okay, M and N are non-parallel lines. Okay, so this is the first thing. M and N are not non-parallel lines. Don't worry if it is capital N. You can put over here also capital. Okay, and L is the transversal. L. If you put this, you remember the symbol. If you put this over L, so it means it is a line. Line L is a transversal. Okay, so this is the basic outline of this thing, and then there are the 8 angles, okay, which are associated with it. So line M and line L are getting intersected by line L, okay, which is a transversal. Okay, and there are the 8 angles which are being formed. Now we'll study about the 8 angles, okay, how these angles can be related. So first we'll learn we'll learn about pair of angles, okay, how two angles are associated with each other. Okay, so the inner angles, okay, the inner angle means angle 3, angle 4,
angle 5 and angle 6. These are interior angles. Okay, so I'll write it over here. Interior angles. ओके, तो इंटीरियर का मतलब क्या होता है कि वो एंगल जो अंदर की तरफ हो। तो इन दो लाइंस एम और एन के अंदर की तरफ जो एंगल्स होंगे उनको इंटीरियर एंगल्स कहेंगे। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे? जो एंगल 3, एंगल 4, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि यही तो लाइन के अंदर है, बाकी सब तो 1, 2, 7 और 8 तो बाहर है। इस लाइन के अंदर जो एंगल्स होंगे वही इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो इंटीरियर एंगल क्या क्या होंगे? एंगल 3, कॉमा, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये इंटीरियर एंगल्स हो गए। ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल्स देख लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे? जो कि बाहर है। बाहर कौन से? 1, 2, 7 और 8। तो लिख लेते हैं एंगल 1, कॉमा एंगल 2, कॉमा एंगल 7, कॉमा एंगल 8। तो ये एंगल्स जो है एक्सटीरियर है, इस लाइन के बाहर है, ये और ये। तो ये एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। ई मतलब एक्सटीरियर और आई मतलब इंटीरियर। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल सिंपली समझ में आया, और वो बोर्ड पे लिखा हुआ है कि कौन कौन से एंगल्स इंटीरियर है और एक्सटीरियर है। ठीक है, सो अब अगली चीज, अब पेयर ऑफ एंगल्स देखते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ एंगल्स कौन कौन से पेयर ऑफ एंगल्स हो सकते हैं? सो पहला पेयर ऑफ एंगल है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब एंगल्स को ऐसे लिख देता हूं, इसका मतलब एंगल्स है, एक एंगल और एस। ठीक है, इसका मतलब एंगल्स है। अब पूरे चैप्टर में यही सिंबल यूज करेंगे एंगल्स के लिए। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? जो एंगल्स कॉरेस्पॉन्ड करें। कैसे? मतलब नहीं, ये ऐसे कहना नहीं कि कॉरेस्पॉन्ड करें, होता क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल? जैसे कि एंगल 1, अब ये लाइन एम और एन को देखना है। अब इस लाइन एम और एन के यहां पे एक एंगल 1 है, ठीक है, और यहां पे लाइन एन के ऊपर सेम ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड पे ये दोनों एंगल्स हैं। तो दोनों लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड, मतलब कि एंगल 5 की बात करते हैं तो वो लाइन एन पे है, ठीक है, और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड पे है। सो एक तरीके से ये दोनों एक दूसरे को कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये एक ही प्लेस पे हैं लेकिन दो डिफरेंट लाइंस पे हैं, इसीलिए इनको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कह देते हैं। तो एंगल 1 एंड एंगल 5 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही कौन? एंगल 2 जैसा एंगल कहां पे है? एंगल 2 कैसे? एंगल 2 को डिफाइन कीजिए। एंगल 2 हो गया लाइन एम के ऊपर और ट्रांसवर्सल के राइट साइड। तो यहाँ पे एन के ऊपर कौन है? एंगल 6, और ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे भी है, तो एंगल 6 हो जाएगा। एंगल 2 एंड एंगल 6 विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आ रहा है बात? अब ऐसे ही एंगल 4, कोई भी एंगल पिक कर लीजिए, फिर उसका कॉरेस्पॉन्डिंग खोजिए। एंगल 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा? एंगल 4 को डिफाइन कीजिए। एंगल 4 ये कहता है कि वो लाइन एम के नीचे है और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट पे है। तो अब वही चीज यहां खोजिए। लाइन 4 हो गया, अब 4 के जैसा एंगल क्या होगा? लाइन एन के नीचे, मतलब 7 या फिर 8, लेकिन ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट पे है, तो 8 भी ट्रांसवर्सल के लेफ्ट पे है। तो 4 और 8 कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, 4 और 7 नहीं होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग। 4 और 8 लाइन के नीचे और लेफ्ट ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में, तो 4 और 8 भी कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। एंगल 4 एंड एंगल 8 विल आल्सो बिकम कॉरेस्पॉन्डिंग। अब एक और एंगल बचा है कॉरेस्पॉन्डिंग, वो आप बताइए। एंगल 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा? एम के नीचे, ठीक है, तो
ये भी n के नीचे कौन से है, 7 और 8, लेकिन ट्रांसवर्सल के राइट साइड, ट्रांसवर्सल के राइट साइड, तो ये कौन सा एंगल होगा, 7। ठीक है, तो एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 3 और एंगल 7 भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है बात, क्लियर है बात। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स देख लिया। अब ये पहला पेयर ऑफ एंगल्स था, तो अब हम ये कहेंगे कि एंगल 1 एंड एंगल 5 कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंगल 2 और एंगल 6 कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंगल 4 और एंगल 8 कॉरेस्पॉन्डिंग है, और एंगल 3 और एंगल 7 कॉरेस्पॉन्डिंग है। अब बात करते हैं हम लोग ऑल्टरनेट एंगल्स की। ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है, मतलब कोई चीज ऑल्टरनेट क्या होती है, 1 के बाद अगला ऑल्टरनेट क्या आएगा, 1 के बाद 2 को छोड़ेंगे और 3 ऑल्टरनेट आएगा। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, जैसे पेयर ऑफ नंबर्स है 1 3 4, 1 2 3 4 5। अब ऑल्टरनेट क्या क्या होगा, 1 को चूज किया अगर, तो 1 का ऑल्टरनेट अब 3 हो जाएगा, मतलब 2 को कैंसिल करके 3, फिर 3 का ऑल्टरनेट क्या हो जाएगा, 4 को कैंसिल करके 5, मतलब एक स्किप करके अगला चूज करते हैं ऑल्टरनेट में। तो एंगल्स में भी वही काम करेंगे, लेकिन कैसे स्किप करेंगे और कैसे रोटेट करेंगे वो बताना है आपको। ठीक है, तो लिख लेते हैं ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। सो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की बात आई है, तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स को देख लेते हैं। अब एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं पहले ये बताइए आप। तो जो भी लाइन, दोनों लाइंस के बाहर जो एंगल्स है वही एक्सटीरियर है, तो वहां पे मैंने पहले ही बता दिया था एक्सटीरियर एंगल। अब इन इन 4 एक्सटीरियर एंगल्स का पेयर कैसे बनाएंगे। अब ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कैसे होंगे, जैसे पेयर है ना, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पेयर है, 1 और 5 कॉरेस्पॉन्डिंग है, वैसे ही ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कैसे बताएंगे। मान लेते कोई भी एक एंगल चूज करते हैं, वन वन एंगल चूज करते हैं, तो अब 1 का ऑल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होगा, मतलब या फिर तो क्लॉकवाइज आप आओ या फिर एंटी क्लॉक, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हमेशा क्लॉक जाएंगे ताकि हमेशा एक इजी सा इंटरसेप्ट, इजीली हम उस चीज को इंटरसेप्ट कर पाए। वन वन ऑल्टरनेट क्या है, 1 2 7 और 8। ठीक है, ये ऑल्टरनेट, ये तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल है, तो 1 फिर 2 को छोड़ देंगे क्योंकि 2 भी एक्सटीरियर है, लेकिन एक को स्किप करना रहता है। फिर अगला एक्सटीरियर कौन सा है, 7, तो 1 और 7, 1 और 7, तो ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर हो गया, एंगल 1 एंड एंगल 7, ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर हो गया। ठीक है, अब फिर ऐसे ही एंगल 2 से स्टार्ट करते हैं, एंगल 2 से स्टार्ट करते हैं इस बार, क्योंकि एंगल 2 भी एक्सटीरियर है, तो एंगल 2 से अब क्लॉकवाइज जाओ जरा, 2 7 बाहर ही बाहर है ना क्योंकि एक्सटीरियर पहले से है, तो 2 7, तो 7 को छोड़ देना क्योंकि अगला नंबर वही है, उसको स्किप करना है क्योंकि ऑल्टरनेट, तो 2 7 और 8, तो अगला क्या आ गया, 8 आ गया, 7 को स्किप कर दे, तो 2 और 8, एंगल 2 एंड एंगल 8 आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल 2 एंड एंगल 8 आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। एक्सटीरियर समझ में आया। अब ऐसे ही, अब यही दो पेयर होते हैं, लेकिन आप चेक कर सकते हो, आप 7 से स्टार्ट कर लो, 7 से स्टार्ट करो, तो 7 से स्टार्ट करोगे तो 7 फिर 8 फिर 1, ठीक, तो 7 के बाद 8 को स्किप करना है, फिर 1 पे आना है, तो 7 और 1 ऑल्टरनेट एक्सटीरियर हुए। तो देखो आपने पहले ही 7 और 1 को ऑल्टरनेट एक्सटीरियर मान लिया है। तो इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में केवल 2 पेयर होंगे ऑल्टरनेट एंगल्स के, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग के 4 पेयर्स होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आप एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हो, जैसे 7 है तो 7 से उल्टा जाओ, 7 फिर अगला एंगल क्या आएगा, एंगल 2 आएगा एक्सटीरियर में, उसको छोड़ देना है, फिर एंगल 1 आएगा, देखिए फिर से 7 और 1 आ गया। तो कैसे भी आप जाओगे, बस एक सिस्टमैटिक तरीके से जाओगे तो आपको एंगल्स मिल जाएंगे। तो ये था ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। ठीक है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को मिटा देता हूं, ठीक है, और फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करते हैं। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करते हैं। तो इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, मैंने बताया कि अंदर के जो एंगल्स होंगे,
तो अंदर अंदर के एंगल्स क्या है, 3 4 5 और 6, 3 4 5 और 6 इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अब इन इंटीरियर एंगल्स को फिर वही चीज ऑल्टरनेट, तो कोई भी एक एंगल पिक कर लेते हैं। तो मान लेते हैं 4 हमारा पहला इंटीरियर एंगल है, तो अब 4 से अगला एंगल क्या आएगा इंटीरियर में, 3, और फिर अगला क्या आएगा 6। तो हम 4 3 6, तो 3 को स्किप करेंगे और 6 को चूज करेंगे, तो ये ऑल्टरनेट हो गया। ठीक है, तो 4 और 6, 4 एंड 6, ठीक है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। फिर एक और, अब अगले पे जाते हैं 3 पे, 3 पे, फिर 3 पे भी फिर वही करते हैं। 3 के बाद 6 आएगा, 6 को छोड़ देंगे क्योंकि ऑल्टरनेट चूज करना है, तो 5 आ जाएगा। 3 एंड 5, एंगल 3 एंड एंगल 5। ठीक है, तो ऐसे ही आप हर सबके साथ 6 के साथ कर सकते हो। तो 6 के बाद 5 आता है, 6 के बाद ये 5 आया, 5 के बाद 4 आया, तो 5 को छोड़ देंगे, 6 एंड 4, तो पहले ही लिख चुके हैं 6 एंड 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो फिर से दो ही पेयर बनेंगे, तो ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हुआ, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुआ। क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यही था। और फिर अब एक और पेयर ऑफ एंगल्स बचा है जिसको को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आप ये देख लो। सो अब अगले एंगल की बात करते हैं जो कि आखिरी पेयर ऑफ एंगल होगा। ठीक है, तो उस पेयर ऑफ एंगल की बात कर लेते हैं। तो अगला पेयर ऑफ एंगल का नाम है को इंटीरियर या फिर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर। इसको को इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं या कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर। तो को इंटीरियर यहीं से आ जाता है, कॉन्जिक्यूटिव। और ऑल्टरनेट मतलब होता है कि एक के बाद अगला स्किप करो फिर अगले को चूज करो। कॉन्जिक्यूटिव में क्या होता है, लगातार, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो कॉन्जिक्यूटिवली आना। कॉन्जिक्यूटिवली का मतलब होता है लगातार आना, तो वही होता है कॉन्जिक्यूटिव। और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल सब नाम से ही समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स या इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, फिर से पहले तो देख लो। इंटीरियर है, इंटीरियर मतलब यही सारे। अब इन्हीं सब में से कोई पेयर होना है, तो पेयर कैसे करेंगे, मान लेते हैं 4 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर 4 से स्टार्ट करेंगे तो अब अगला एंगल कौन सा हो जाएगा, 5। देखो यहाँ 4 से 3 में नहीं जाना है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। 4 से अगला एंगल 5 हो जाएगा, क्योंकि एक एंगल लाइन एम पे होना चाहिए और दूसरा एंगल लाइन एन पे होना चाहिए, और दोनों इंटीरियर होने चाहिए, तभी वो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल होगा। तो एंगल 4 एंड एंगल 5 आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एंगल 4 एंड एंगल 5 आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, लगातार आ रहा है, इसमें कुछ स्किप नहीं करना है। फिर ऐसे ही एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 6 भी लगातार आ रहे हैं, तो उनको हम कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स बोल देंगे। ठीक है, तो एक बार देख लो आप वापस से। ठीक है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर मतलब लगातार और एक ही साइड, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे। मतलब अगर ये ट्रांसवर्सल एल है तो इसके एक ही साइड पे, मतलब यही साइड पे दोनों एंगल्स होने चाहिए। अगर दूसरा साइड जाते हैं तो 3 एंड 6, तो एक साइड पे जो इंटीरियर एंगल्स हैं उन्हीं को कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो एंगल 4 एंड एंगल 5 और एंगल 3 और एंगल 6। ठीक है, तो ये था कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो हमने एक्सटीरियर एंगल्स की बात की, ट्रांसवर्सल की बात की, इंटीरियर एंगल्स की बात की, फिर हमने पेयर ऑफ एंगल्स की बात की, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और फिर फाइनली हमने को इंटीरियर एंगल्स की बात की, या फिर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो यही को इंटीरियर एंगल्स थे, और ये हमारा बेसिक ट्रांसवर्सल के बारे में हमने जाना है। अब हम पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल को यूज करेंगे, और इन्हीं एंगल्स को वापस से कैसे पैरेलल लाइंस में अप्लाई करें वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।